हाँ जी बेटा नमस्कार. So as you know we are doing indices, right? Indices. In that yesterday's class we have already done with the understanding meaning of the indices, and then we started with laws. Okay. Out of that, one we have already completed. One of them we have already completed. As I told you, laws is nothing but a concept. Okay, concept जिसको हम फॉर्मूला में डिराइव कर देते हैं, राइट? फार्मूला में डिराइव कर देते हैं, एंड ये फार्मूला आपको क्या करना पड़ता है, याद करके रखना पड़ता है, सो दैट व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स वी अप्लाई इट. ओके, वी अप्लाई वेरी थॉरोली. इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर. एज आई टोल्ड यू, ओनली द थिंग इज यू हैव टू कीप डूइंग प्रैक्टिसेस. ओके, सो थोड़ा हमें रिवाइज करके दे दीजिए जो हमने लास्ट क्लास में किया था. ठीक है बेटा? तो लास्ट क्लास में हमने यहीं से शुरू किया था. तो व्हाट वी डिड एक्चुअली दैट्स व्हाट मीनिंग. सी है मीनिंग में मैंने बोला था यदि आपको एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आता है तो समझ जाओ कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी है. ओके, एंड आफ्टर दैट वी डिड लॉज. आफ्टर दैट वी डिड व्हाट बेटा? लॉज. So all together 4 law, 4 formula we have to read, that's all, and this chapter will be done. Okay sir. So first one I explained, if there is something called a square, तो इसको हम बेस कह देते हैं एंड इसको हम क्या कह देते हैं? पावर कह देते हैं. सर इसका लिखने का तरीका वेरी सिंपल्स. फॉर एग्जांपल इफ देयर आर सम 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 times, so how we have that 2 being base and how many count? 5 count, so a square. If you will further simplify, it will come how much? 32. So either you do this way, it will be how much? 32, or this you convert into this form, 2a square form, and then simplify. The meaning would be same, the answer would be same. Second thing, what I told you, any base to the power 0 is always equal to 1. Any base to the power 0 is always equal to क्या बेटा? 1, right? So any base to the power 0, any base to the power 0 कहने का मतलब a का पावर यदि 0 है तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. मैंने कहा था इसको भी आप याद रखिएगा. Then what I did, I told you कि I will derive this so that you will understand, and I have derived and explained you. कहाँ पे सर? आगे है, मैं बता दूंगा. तीसरा मैंने कहा था यदि कहीं पे a रूट अंडर a है और यहाँ पे r है तो इसको हम लिख सकते हैं a to the power 1 by r, right? a to the power 1 by r. So if nothing is there, then always we have to pretend कि it's 2. रूट अंडर के बाहर यदि कुछ नहीं है कमांड तो हम समझेंगे कि इट्स ऑलवेज 2. सो रूट अंडर 5, इफ इट्स रूट अंडर 5, व्हाट वुड बी द 5 to the power 1 by 2. Here they have mentioned, then still 1 by 2. Here for example they have mentioned 11, then 3 to the power 1 by 11, right? If somewhere there is a, अब बताओ क्या होगा? 5 to the power 1 by a. कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चा. Okay, right. Another one, what we have checked it, a to the power minus 1. a to the power minus 1 in the sense you have to pretend that it's in denominator form. If you want to remove minus, you have to put it on a denominator form. So 1 divided by a. If nothing there, then obviously to the power 1, but minus is gone. See, here it was minus, right? And here it's plus, so minus is gone. For example, if I am writing 3 to the power minus 2, then how you write? 1 divided by 3a square, 3 3s are 9, so 1 by 9, isn't it? Yes sir. Then we started with laws. Come down. Then we started with क्या बेटा? Laws on indices. And first I have told you a to the power m and a to the power यदि n है तो हम सिंपली क्या कर देते हैं? बेस कॉमन है तो कॉमन इसको रख देते हैं, एंड पावर को हम ऐड कर सकते हैं, m प्लस n कर सकते हैं बेटा.
Is there any doubt? No. So what you have to do, you just have to remember it, because this formula is going to be used predominantly in each and every problem. Almost सारे problem में ये formula use हो जाता है. Okay, if base is same, then power can be added. That's all. ये दो बात मैंने लिख दिया. चलिए, for example 2 का पावर क्यू, 2 का पावर स्क्वायर, तो क्या करोगे, पावर को जोड़ दो, बेस तो सेम है, तो that's all. Right? Okay sir, then we have done illustrations, wonderful illustrations which we are going to see again. Illustration 2, illustrations, so many illustrations. Okay, now come down to law 2, come down to law 2. So this is something new we are studying today, नया लॉ है. ओके बेटा, चलिए, तो यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए if there are a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a टू द पावर m माइनस n. ये होगा या नहीं होगा? सर I taught you something before itself. क्या, यदि यहाँ पे a टू द पावर m है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर m मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय a का पावर n लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं सर. यहाँ पे a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय इसका बोलो, इसका मैंने दिखाया था कि इफ़ देयर इज a का पावर माइनस n है तो हम क्या लिखेंगे, a टू द पावर n, मतलब ये माइनस ख़त्म हो जाता है यदि ये डिनोमिनेटर फॉर्म में चला जाता है. तो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर फॉर्म में है, मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं सर जी. तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा. अब आप चाहो तो रूल वन का प्रयोग कर लो, एंड a टू द पावर बेटा m प्लस माइनस n, कहने का मतलब a टू द पावर m माइनस n. दैट्स ऑल. यहाँ पे मैंने क्या किया, रूल 1 का प्रयोग किया. दैट्स ऑल. a का पावर m मल्टीप्लाइड बाय a का पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n. दैट्स ऑल. इसका प्रयोग किया मैंने. ओके, सो ऑल द रूल्स आर इंटरडिपेंडेंट. ओके, आई एम गोइंग टू यूज हेयर एंड देयर, सो बी केयरफुल ऑन इट, बी केयरफुल ऑन इट बेटा. चलिए, फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल लेके एक हम इलस्ट्रेशन करके समझ लेते हैं इसको. तो कहीं पे बताओ कि आपको दे दिया गया कि 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर कितना 3. तो अब इसको सिंप्लीफाई, तो नॉर्मली आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे सर, ऐसे करेंगे, 5 टाइम 2 लिखेंगे, 2 2 2 2 एंड बेटा 2 डिवाइड बाय 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 2. एम आई राइट? राइट सर. सो ये 2 से ये गया, ये 2 से ये गया, ये 2 से ये गया. सर सिंपल है, आई नो इट्स वेरी सिंपल्स एंड यू गाइज आर जीनियस. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बताइए बेटा कितना होगा, 4. अच्छा, इसको अब हम आपके फॉर्मूला के टर्म में लिखते हैं, आपके फॉर्मूला के टर्म में लिखते हैं. कैसे, 2 का पावर 5 डिवाइड बाई 2 का पावर 3, बोले तो 2 का पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 का पावर 2 इक्वल टू 2 2 जा 4. सर जी मैजिक हो गया. क्या मैजिक हो गया, सिंपल है. ओके, एंड यहाँ पे मैंने किया क्या है, बस आपका फॉर्मूला यूज़ कर दिया, a टू द पावर m, a टू द पावर n इक्वल टू a का पावर m माइनस n. राइट? सिंस आई हैव यूज दिस फार्मूला, दिस आंसर हैज़ बिन डिराइव्ड, इजंट इट? यस सर. अच्छा सर, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताओ. इसको हम और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था 2 का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई, इसको कैसे कर देंगे, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 2 का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय, मैंने बोला था कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, कौन सा फार्मूला मैंने जनरल अंडरस्टैंडिंग जो दिया था वो वाला. जैसे यदि 2 का पावर माइनस n है, सॉरी, यदि x का पावर माइनस x टू द पावर माइनस n, तो इसको क्या लिखते हैं, xn लिख सकते हैं ना, आप ही का फॉर्मूला है.
सर फार्मूला में आपने कुछ और प्रयोग किया था, क्या मैंने प्रयोग किया था? देखो a का पावर -1, ओके सर आपने बोला था कि a का पावर -1 है तो 1/a, ओके जो मैंने लिख के दिया था वही लिख के देता हूँ, नो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बताइए इसको क्या लिखेंगे, 2 to the power 5 -3 प्लस होगा प्लस एंड ये कोस्ट में माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है -3, तो 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, राइट। सो I will try to make you understand all the possible ways, okay, and let me tell you there is nothing that you can't understand, okay, only the thing is you should be focused, तो आपका CPT पास होना, फाउंडेशन पास होना बहुत दूर नहीं है, बस आपको थोड़ा अलर्ट रहना है एंड देन यू जस्ट हैव टू फॉलो व्हाट आई से, ओके। एंड मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, बेटा कम से कम 3-4 बार सॉल्व होना चाहिए। क्या चीज़ का सर, स्टडी मटेरियल आप कर लो सॉल्व, दैट्स ऑल, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, व्हाट आई एम डूइंग इज सफिशिएंट, राइट। तो नथिंग टू वरी, ओके। चलिए सर, इसके बाद हम देख लेते हैं एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। चलिए एक इलस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल 4 का पावर x -1 डिवाइड बाय x टू द पावर -1/3। तो यहाँ पे आप सीधा, चूँकि मैंने आपको समझा के दिया है, आप यहाँ पे सीधा फार्मूला का प्रयोग करोगे। बेस क्या है, सेम है x n x, तो क्या लिखोगे x। चलिए m का पावर n, तो जौ का तो ये नीचे है तो x का पावर माइनस n -1/3, क्योंकि x का पावर -3 है। देखो हर बार मैं 3 तरीका से आपको सॉल्व करके नहीं बता सकता। फार्मूला यू हैव टू यूज़ सो दैट यू कैन डिराइव द आंसर क्या वेरी क्विकली, यू वॉन्ट बी हैविंग सो मच ऑफ टाइम टू सॉल्व स्टेप वाइज, दैट्स वाई यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फार्मूला। तो यहाँ पे मैंने किया क्या है, a का पावर यदि m है डिवाइड बाय a का पावर यदि n है, तो मैंने a का पावर m -n किया है, दैट्स ऑल, यही किया है। देख लो, अब कहने का मतलब a का पावर m एंड a का पावर n, तो व्हाट आई डिड, a टू द पावर m, a टू द पावर n, a टू द पावर m -n, दैट्स ऑल, राइट सर। तो x का पावर -1, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, कितना 1/3, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई x। अब यहाँ पे आपको एडिशन डिलीशन तो मैंने सिखाया था ना, 3 -3 + 1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 2/3। किसी को कोई डाउट है? नहीं है सर। अच्छा, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? फर्दर हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस कहने का मतलब क्या होता है, ये डिवीजन के टर्म में जा सकता है, तो 1/x टू द पावर 2/3। कैसे, सिंस a का पावर यदि -1 है तो 1/a होता है। मैं फार्मूला लिख के देता हूँ कि कहाँ कैसे हमें अप्लाई करना है ये समझने के लिए, ठीक है। And due to frequent use you will remember also, so don't be lazy, what I write you write down, okay, yes sir, that is for sure, I will write down। तो इसको यदि मैं कहूँ तो x to the power 2/3, that's all, right। So when I will ask you to simplify, you will be able to do now, यस सर। अगला इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, क्या है सर, इफ एंड ऑल दिस इलस्ट्रेशंस आर फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल, ओके, सो यू शुड नॉट हैव एनी डाउट दैट कहाँ से सर लेके आ जाते हैं, नथिंग, ओके। चलो 2 a का पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय a 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6a
7/3. Okay. नाउ इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. ये हुआ नहीं है पूरा. डिवाइड बाय 9 a to the power minus 5/3 मल्टीप्लाइड बाय a to the power 3/2. एंड आपको बोलता है कि इफ़ a इक्वल टू 4, इफ़ a इक्वल टू 4 तो आप बताओ. चलो इसको हम एकदम से स्टेप वाइज जाएंगे. ठीक है, नथिंग टू वरी. ओके बेटा, जैसा तो हम पहले तो हम करते हैं 2/9 को साइड कर देते हैं. देखो इधर 2/9 मल्टीप्लाइड बाय, आपके पास क्या है, a का पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय a का पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ पे ये 2 एंड ये 6 को मैंने एक साथ ले लिया. a का पावर -7/3. अब कोई मुझे बताएगा, क्या पूछना है सर, कि ये सब नीचे में है, राइट. तो इसको नीचे में लिख दो, इसको नीचे में ही लिख दो. a to the power -5/3 मल्टीप्लाइड बाय a to the power 3/2. दैट्स ऑल. तो मैंने क्या किया, बस अरेंज कर लिया कि जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है उसको एक साथ लिख लिया और अदर देन दैट है उसको अलग से लिख लिया. ओके सर. अच्छा, एक चीज़ और आप कर लो, तो यदि कहीं पे काटा काटी होने वाला है तो उसको कर लीजिए. जैसे 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. ओके. नाउ हेयर व्हाट विल बी रिजल्टेंट, 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय. अब आप मुझे बताओगे बेस देखो सबका क्या है, ए. सो सबका बेस क्या है, a. तो यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना, a. अब 1/2 प्लस 2/3 प्लस -7/3. तो यहाँ पे जो मैंने यूज किया वो क्या किया कि यदि a का पावर m है मल्टीप्लाइड बाय a का पावर n है, तो a का पावर m प्लस n लिख सकते हैं, वही है ना, m n o ऐसे करके. तो हम क्या लिख लिए, a का पावर m प्लस n सब टर्म को. अब दूसरा क्या होता है कि कहीं पे a का पावर -1 है, तो इसको हम क्या लिखते थे, 1 डिवाइड बाई a का पावर 1. तो यहाँ पे देख लो ये सब अब डिवीजन के टर्म में है. तो कहने का मतलब ये है एक्चुअली 1 बाई a का पावर -5/3, 1 बाई a का पावर -3/2. एंड ये जब ऊपर ले जाएंगे, जैसे ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, तो यदि यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस हो जाता. तो इसको क्या करेंगे, उसी टर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे. क्या करेंगे, इसको उसी टर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, राइट. तो यहाँ पे -5/3, क्योंकि ये डिवीज़न के टर्म में है, कहने का मतलब माइनस होगा ऊपर जाएगा तो, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में. एंड ये 3/2, तो -3/2. अब आप सिंपली आपने सिंप्लीफाई करना है. अब बताइए यहाँ पे 1/2 प्लस 2/3 प्लस माइनस माइनस 7/3 माइनस प्लस 5/3 एंड हेयर -3/2. राइट सर. अब सबका हम एलसीएम ले लें. 2 3 3 3 2. पहले हम देखते हैं 2 से ये कट जाएगा, ये तो नहीं कटेगा, 2 1 जा 2. दूसरा हम देखते हैं 3 से, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 1 1 एंड दिस इज 1. सो 3 2 जा 6, 1 जा 6. तो सबका एलसीएम यदि आएगा तो कितना होगा, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई a. सबका एलसीएम हमने निकाला था 6. ओके. अब यहाँ पे देख लो 2 3 जा तो 3 का 1 जा 3,
प्लस यहाँ पे देखो 3 2 जा तो 2 2 जा कितना 4 प्लस इसका 3 2 जा 6 एंड 7 2 जा 14। यहाँ देखो 3 2 जा 6 एंड 7 2 जा 14, 7 2 जा कितना 14। अब क्या है 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10 तो प्लस 10, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा कितना 9 तो माइनस 9। राइट सर 4/3 मल्टीप्लाइड बाई ए। अभी करो प्लस 10 में से माइनस तो बचा कितना है 1 तो 14, 14 प्लस 1 15 16 17 18 19 20, 20/6। ओके ट्वेंटी बाई 6 3 4 14 10। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पे देखो तो 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4 होगा ना, क्या बरखुरदार 4 होगा राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/6। ओके चलो नाउ 4/3 मल्टीप्लाइड बाय ए एंड यदि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 जा 6 2 1 जा 2 1 जा तो a टू द पावर 1 डिवाइड बाय कितना 3, isn't it? Yes sir. Now 4/3 मल्टीप्लाइड बाय a इक्वल टू आपको बोल रहा है कितना कि a इक्वल टू 4, a इक्वल टू कितना 4 राइट। यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कहीं पे आपका गलती हुआ है। Here you see plus, here it's minus no, so 3 2 जा 6 7 2 जा 14 and this will be क्या minus 14। बच्चा what kind of mistake you are doing bro, minus 14 right। now minus 14 4 plus 10 कितना हो गया 14 14 cancelled, here it will be multiplied by a to the power minus 6 divided by 6, isn't it? Now minus 9 plus, so minus 6 and divide by 6. So here what you will have, this won't be there, so here you will have 6 1 ja, so a to the power minus 1, isn't it? And if there is a to the power minus 1, that's all you have to tell me now, you have to tell me now what will be the answer 1 by a, right? Right sir। तो यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय, एंड आप यदि सवाल में जाके देखोगे तो क्या बोल रहा है a इक्वल टू 4, a इक्वल टू कितना 4, तो a इक्वल टू यहाँ पे कर दो 4। अब ये 4 से ये 4 कट जाएगा, सो 1/3 राइट। सो दिस इज सिंपल simplification, only the thing is addition subtractions you have to take care of। okay चलो बेटा मैं भी गलती कर सकता हूँ, okay so nothing to worry if you are doing any mistakes। okay only the thing is you just have to improve it, and how you will improve by practice। ठीक है बेटा, चलिए and quickly we'll learn laws 4। law 3 इसमें क्या है कि if a का पावर m है n होल टू द पावर n है तो क्या होगा a का पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, कहने का मतलब a का पावर mn। सर थोड़ा एग्जाम्पल, कहीं पे बेटा 2 का पावर 2 है n होल टू द पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला
2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, कहने का मतलब 2 to the power 3 2 जा 6, right, that's all. So this way you have to do. Now if you will do, then what will be the simplification? 2 2 2 2 2 and 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, right? And if you want to do simplification, simple term, so 2 2 ja 4 to the power 3, so 4 4 4, 4 चौका 16 चौका 64, right? कहने का मतलब this formula holds good, right? So directly if there are power to the power, then simply you multiplied power and power. Okay sir, इसको आपको क्या करना है, बॉक्स में रखना है, क्योंकि इसको आपको रिमेंबर करना है, एंड एवरी टाइम वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी गोना यूज दैट. ओके, नाउ यू टेल मी, वी आर गोइंग टू लर्न लॉ 4. वी आर गोइंग टू लर्न क्या, लॉ 4. इसमें क्या है, इफ ए बी का पावर n है तो क्या होगा, a का पावर n, राइट, मल्टीप्लाइड बाय b का पावर n. ओके बेटा. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 2 multiplied by 3 to the power 3, then how you write? Simply 2 to the power q multiplied by 3 to the power q, अर्थात 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, that's all. 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9 तिया 27, सो 8 सत्ते 56, 5 8 दूना 16, 4 20 21, that's all. So whenever they ask you to simplify, you just have to simplify, that's all, nothing to worry about. So what we have done, we have done with this law as well, Now what I will do, I will make summary for you. Okay, I will make summary for you. What you have to remember in this chapter, I just make summary for you. Okay, so what are the things? First things you have to remember is, if there are a to the power 0 तो क्या होगा, 1. Okay, second thing you have to remember, if there are r and root under a, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, a to the power 1 by r, right? All these formula we gonna use and nothing is there in this to remember. Okay, you just have to revise 1 or 2 times, you automatically will learn it. a to the power 1, 3, 4 में मैंने क्या लिखा था. ओके, एंड इसके बाद हमारा क्या हुआ था, इसके बाद हमने लॉ शुरू कर दिए थे, एंड लॉ के अंदर हमारा क्या था कि इफ़ देयर इज़ a का पावर m मल्टीप्लाइड बाय a का पावर n, तो क्या होगा, a to the पावर m प्लस n. 4. 5 में बताओ, 5 में क्या है, a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n, तो क्या होगा, a का पावर m माइनस n, राइट सर. 6 में बताओ, 6 में क्या है, इफ a का पावर m n, तो क्या होगा, a to the पावर m n n, isn't it? yes sir. 6. 7 बताओ, 7 में क्या है, ए बी टू द पावर n है, तो क्या होगा, a का पावर n एंड b का पावर n,
राइट सर। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है, बस 7 फार्मूला आपको याद रखना है एंड यू विल बी हीरो इन दिस चैप्टर, दैट्स ऑल। ओके बेटा, तो you remember all these, and then next class what we'll do some illustrations. Okay, we'll do some illustrations and then the straightforward exercise. Straightforward we'll move on to exercise. So what you have to done, you have to see lectures on indices. Lectures you have to see all the lectures you have to see lectures on indices. So including this there will be 2 lectures. Okay, first one I explain the general concept and law 1, and here I have consider all the remaining laws. So there are 4 laws and general understanding, right, and general understanding. Okay, so see you in next class. By the time if you have any doubt, you are welcome on this beta, only WhatsApp. Okay, पहले मुझे WhatsApp कीजिए and I will give you the time so that I can explain you thoroughly. Okay, nothing to worry, and keep following, keep watching, enjoy your study. Okay, take care, have a good day, bye bye.